میں آپ کو اپنے ایک یادگار سفر کی کہانی سنانے چلا ہوں۔ یہ سفر بھی میرے دوسرے بے یار و مددگار حیرت انگیز مصیبتوں سے بھرے مگر ایڈوینچر سفروں کی طرح ہی تھا۔ جب میں گھر سے بھاگ کر اس سفر پر روانہ ہوا تو مجھے معلوم تھا کہ میں ایک ایسی اندیکھی دنیا میں داخل ہو رہا ہوں جہاں قدم قدم پر مجھے مصائب کا سامنا ہوگا۔ کوئی دوست یا بھائی نہیں ہوگا، پھر بھی انجانے شہروں پر اسرار جنگلوں اور نئی دنیا کی سیاحت کا شوق مجھے آگے ہی آگے لیے جا رہا تھا۔ یہ میں سن 1943 کی بات کر رہا ہوں۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور اس وقت دوسری عالمی جنگ بڑے زوروں پر تھی، مگر یہ جنگ ابھی یورپ تک ہی محدود تھی اور جاپان ابھی اس میں نہیں کودا تھا، جس کی وجہ سے جنوبی مشرقی ایشیا کا علاقہ پرسکون تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں امریکہ نے ہیروشیما پر 1945 میں پہلا ایٹم بم گرایا تھا، جس میں 1.5 لاکھ انسان پل بھر میں جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ مگر ابھی بنگال اور جنوب مشرق کے دوسرے علاقوں میں حالات نارمل تھے، اگرچہ اس بات کا خدشہ ضرور تھا کہ جاپان بھی اعلان جنگ کر دے گا۔ بہرحال میرا شوق سیاحت مجھے گھر سے نکال کر اس یادگار تاریخی سفر پر لے اڑا۔ میرے پاس سوائے تن کے کپڑوں اور کچھ روپیوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں سفر میں اپنے ساتھ سامان رکھنے کے خلاف تھا، سامان کے بغیر میں آزادی محسوس کرتا کہ جب اور جہاں چاہے ریل گاڑی سے اتر کر جا سکتا تھا۔ میں ٹرین کے ذریعے کلکتہ پہنچا۔ یہ ساون بھادوں کے دن تھے اور بارشیں ہو رہی تھیں۔ جدھر میں جا رہا تھا ان علاقوں میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کئی دن سورج نظر نہیں آتا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے اور بوندا باندی ہوتی رہتی ہے۔ مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ سالون بھادوں میں جنوب مشرقی ایشیا کے سمندر چڑھے ہوتے ہیں اور سمندری سفر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال میں خضر پور کی جیٹی یعنی بندرگاہ سے ایک سمندری جہاز میں سوار ہو گیا۔ رنگون چونکہ انگریزوں کی عملداری میں تھا، اس لیے پاسپورٹ ویزے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس خضر پور جیٹی پر مسافروں کو ٹیکے لگا کر ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ میں نے کلکتہ سے رنگون تک سمندری جہاز کے 3rd کلاس کا 25 روپے کرایہ ادا کیا تھا۔ یہ سمندر میں 3 دن کا سفر تھا۔ جس سمندر میں ہمارے جہاز کو سفر کرنا تھا وہ خلیج بنگال کا سمندر تھا، جسے کالا پانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سمندر کا پانی کالا سیاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سمندر کی گہرائی اور تہ میں اگی ہوئی سیاہ جھاڑیاں، جنگل اور سیاہ چٹانیں ہیں۔ میں نے ابھی تک کالا پانی نہیں دیکھا تھا۔ یہ میرا پہلا موقع اور اس علاقے میں پہلا سفر تھا۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز کے عرشے یعنی ڈیک پر چڑھ گیا۔ 3rd کلاس کے مسافر ڈیک پر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ مسافروں میں گجراتی، مارواڑی، سورتی، میمن اور پوربے سبھی قوموں کے لوگ تھے۔ سب نے اپنا اپنا سامان ڈیک کے درمیان میں لگا کر اوپر چادریں وغیرہ تان لی تھیں تاکہ بارش سے بچاؤ ہو سکے۔ میرے پاس نہ کوئی سامان تھا نہ چادر، پھر بھی میں بڑا خوش تھا کہ سمندر میں سفر کروں گا۔ یہ میرا پہلا سمندری سفر تھا۔ جب یہ خیال کرتا کہ کل ہمارا جہاز کھلے سمندر میں ہوگا اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہوگا تو دل مسرت سے لبریز ہو جاتا۔ یہ خبر نہیں تھی کہ اس وقت میری کیا حالت ہونے والی ہے۔ خضر پور جیٹی سے آپ رنگون کی طرف سفر کریں تو ایک دم سے سمندر نہیں آ جاتا۔ جہاز 10-12 گھنٹے کا سفر ایک دریا میں کرتا ہے جس کا نام دریائے ہمگلی ہے۔ اس وقت بھی جہاز دریا میں ہی کھڑا تھا۔ جہاز کے پچھلے اور اوپر والے ڈیک پر بڑے بڑے تختے لگے تھے جن پر سے گزر کر مسافر اور قولی سامان اٹھائے جہاز میں داخل ہو رہے تھے۔ میں ڈیک کے جنگلے کے ساتھ لگا یہ دلچسپ منظر دیکھ رہا تھا۔ آسمان بادلوں میں ڈھکا ہوا تھا مگر بارش رکی ہوئی تھی۔ آخر جہاز کے تختے نیچے کھینچ لیے گئے۔ جیٹی پر لوہے کے بڑے بڑے کھمبوں سے بندھے ہوئے رسے کھول کر جہاز کے اوپر اچھال دیے گئے۔ جہاز نے ہارن بجانے شروع کر دیے۔ پھر مجھے اپنے پاؤں کے نیچے لکڑی کے فرش میں لرزش محسوس ہوئی۔ جہاز کے انجن سٹارٹ ہو گئے تھے اور میں بڑے شوق سے نیچے دیکھنے لگا۔ جہاز آہستہ آہستہ بندرگاہ کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ جب وہ کافی پیچھے ہٹ گیا تو پھر دریا میں بالکل سیدھ میں چلنے لگا۔
मैं दौड़कर जहाज के सामने वाले हिस्से में आ गया, जहां जहाज के दोनों पहलू आकर मिलते थे। यहाँ एक झंडा हवा में फड़फड़ा रहा था। उस वक्त दिन के 10-11 का टाइम होगा। जहाज शाम तक दरिया में सफर करता रहा। अभी तक सफर बड़ा हमवार था और जहाज बिल्कुल नहीं डोल रहा था। दोनों तरफ के किनारे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे थे। शाम के वक्त वो इतने दूर हो गए कि सियाह लकीरों की मानिंद दिखाई देते। अब जो मैंने नीचे झुक कर देखा तो दरिया के गदले पानी में समंदर का पानी भी घुल मिल रहा था। मैं बड़ा खुश हुआ कि समंदर करीब आ रहा है। फिर अंधेरा छा गया। अगरचे इधर के इलाके में जंग का कोई फौरी खतरा नहीं था, इसके बावजूद जहाज पर रात को ब्लैक आउट कर दिया गया। मैं वहीं डेक पर एक तरफ पड़कर सो गया। सुबह आँख खुली तो जहाज डोल रहा था और मुझे चक्कर आने लगे। जंगले को पकड़कर देखा तो दिल पर खौफ तारी हो गया। चारों तरफ काला सियाह समंदर ही समंदर था। इस कदर काला हबशी टाइप का समंदर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहला ख्याल जो दिल में आया वो ये था कि अगर जहाज डूब गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं जहाज पर क्यों बैठ गया। सफर करना ही था तो किसी जंगल या किसी सहरा की तरफ निकल जाता। उस वक्त मुझे खुश्क जमीन माँ की गोद की तरह याद आने लगी, मगर मैं फंस गया था और अब कुछ नहीं हो सकता था। जहाज डोल रहा था। समंदर में अगर तूफान ना हो तो समंदर में बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठती, बल्कि समंदर ऊपर नीचे होता रहता है। हमारा जहाज ऊपर नीचे भी हो रहा था और दाएं बाएं डोल भी रहा था। मैं दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह किसी तरह जहाज खुश्की के साथ जा लगे। मगर ये 3 दिन का सफर था। रेलगाड़ी होती तो मैं उतर जाता। समंदरी जहाज से मैं नीचे भी नहीं उतर सकता था, बस सब्र करके बैठा रहा। दिन गुजर गया। जब रात आई तो अचानक हवाएं तेज हो गईं और बारिश भी शुरू हो गई। मैं डेक के दरमियान जहां लंगर डालने वाली मशीन थी, वहां तरपाल के नीचे आकर बैठ गया। हवा तेज हो गई। फिर समंदर में जैसे तूफान आ गया। जहाज दाएं बाएं बुरी तरह डोलने लगा और मैंने लंगर की जंजीर को पकड़ लिया। समंदरी मौजें शोर मचाती आईं और जहाज से टकराकर उसे दूसरी तरफ धकेल लेकर जाती। मुसाफिरों में अफरा तफरी सी मच गई थी। समंदरी मौजों का पानी डेक पर आने लगा। एक तरफ से समंदर की लहर आती और जहाज के डेक पर से होकर दूसरी तरफ निकल जाती। उसी वक्त खतरे का अलार्म बज उठा और मुसाफिर चीख व पुकार करते पिछले डेक की तरफ भागने लगे। मुझे मालूम था कि अगर मैंने जंजीर को छोड़ दिया तो तूफानी मौजें मुझे अपने साथ बहाकर समंदर में ले जाएंगी। मैं वहीं जंजीर से चिमटा तूफान में बैठा रहा। समंदर में तूफान आया हुआ था और मैं समंदरी जहाज के डेक पर लंगर डालने वाली मशीन की जंजीर पकड़े सहमा हुआ बैठा था। बारिश, तेज हवाओं की चीखें और मौजों के थपीड़े। लगता था जहाज अब डूबा के डूबा। मुझे जितनी दुआएं याद थीं पढ़ डालीं। सख्त पछता रहा था कि इस मौसम में समंदरी सफर पर क्यों निकल पड़ा। ख्वाम ख्वाह मुझे अलिफ लेला वाले सनदबाज जहाजी का ख्याल आने लगा कि हर बार जब वो सफर पर निकलता तो उसका जहाज डूब जाता था। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह मुझे सनदबाज के अंजाम से बचाना। वो तो जहाज डूबने के बाद किसी ना किसी जजीरे पर जा पहुंचता था और यहाँ तो समंदर की पहाड़ जितनी तूफानी मौजें हम सबको तिनकों की तरह बहा कर ले जाएंगी। खुदा जाने किस नेक आदमी की दुआ कबूल हुई और तूफान का जोर कम होना शुरू हो गया। दिन निकला तो तूफान गुजर गया था, मगर समंदर में बड़ी बड़ी मौजें उसी तरह उठ रही थीं। खुदा खुदा करके वो दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन समंदर में कदरे सुकून हो गया, मगर समंदर चढ़ा हुआ था और उसकी मौजें जहाज के डेक के साथ लगकर गुजर रही थीं। एक देहाती किस्म के मुसाफिर ने किया कि बाल्टी हाथ में ले ली और डेक पर झुककर समंदर में से पानी भरने लगा। जूं ही बाल्टी बेपनाह दबाव और ताकत वाली समंदरी मौजों से टकराई, उछलकर उसके हाथ से निकली और खुदा जाने समंदर में कहां की कहां चली गई। मुसाफिर बेहद खुशकिस्मत था कि बाल्टी उसके हाथ से छूट गई थी, वरना बाल्टी के साथ वो भी समंदर की गहराइयों में गायब हो चुका होता। दूसरे मुसाफिरों ने उसे खींचकर पीछे गिरा दिया और यूं इसकी जान बच गई।
इस जहाज पर ही मेरी मुलाकात वजीर आबाद के एक लड़के से हो गई, जिसका नाम अहमद था। वो भी मेरी उम्र का था और उसका बाप रंगून में फलों का कारोबार करता था। वो वजीर आबाद अपने नाना से मिलने आया था और अब वापस रहमून जा रहा था। जब उसे पता चला कि मैं पहली बार रहमून जा रहा हूँ और वहाँ मेरा ठिकाना भी कोई नहीं, तो उसने कहा तुम हमारे घर चले चलना, मेरे अब्बू तुम्हें कहीं ना कहीं कोई काम भी दिला देंगे। मेरे लिए ये बहुत था कि समंदर पार अजनबी जगह पर मुझे दरबदरी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरे दिन दोपहर के वक्त हमारा जहाज बर्मा के दरियाए ऐरावती में दाखिल हो गया। दरिया के किनारे आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। सूरज गुरूब होने लगा तो जहाज रंगून की बंदरगाह में दाखिल हो गया। यहाँ कई मुल्कों के बहरी जहाज खड़े थे। मैं जहाज से उतरा तो जमीन भी डोलती हुई महसूस हुई। ये 3 दिन के तूफानी समंदर के सफर का असर था। अहमद के वालिद साहब उसे लेने आए हुए थे। ऊंचे लंबे आदमी थे, छोटी दाढ़ी थी और सर पर आधी टोपी रखी थी। अहमद ने मेरा तारुफ करवाया और बताया कि मेरा रंगून में कोई जानने वाला नहीं है। अहमद अपने वालिद को मियाँ जी कहता था। मियाँ जी ने तेज नजरों से मुझे घुवरा और कहा, यहाँ कोई जानने वाला नहीं था तो घर से क्यों निकल पड़े? क्या घर से भागकर आए हो? मैंने कहा, हाँ जी, स्कूल में मार पड़ती थी। मियाँ जी मुस्कुराए, फिर एकदम संजीदा हो गए और बोले, सबसे पहले अपने माँ बाप को खत लिखकर उन्हें बताओ कि तुम खैरियत से हो। खुदा जाने आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। उस जमाने में मोटर कार किसी किसी के पास होती थी। अहमद के वालिद साहब यानी मियाँ जी भी अपनी बगी में आए थे, जो एक डब्बे की तरह बनी थी। उनकी छोटी सी कोठी रंगून शहर के खुले इलाके में एक सरसब्ज ग्राउंड के सामने वाक़ थी। उस कोठी का पूरा नक्शा इतने बरस गुजर जाने के बाद आज भी मेरी आंखों के सामने है। मेरे लिए रात कोठी के गैराज में एक कैंप कार्ट डाल दी गई। कैंप कार्ट एक कम चौड़ाई वाली फौजी चारपाई होती है। लकड़ी के फ्रेम पर तरपाल मुंड दी जाती है। रात को वहाँ बहुत मच्छर थे। रंगून के मच्छर देखकर मैं कांप उठा। मैंने इतने सेहतमंद मच्छर पहले नहीं देखे थे। दूसरे दिन अहमद ने मुझे एक लौबान सा दे दिया जिसकी मैंने धोनी लगाई। उसके धुएं में मच्छर तो भाग गए मगर मेरा नाक में दम आ गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका आदी हो गया। मियाँ जी ने सबसे पहले मुझसे घर खत लिखवाया कि मैं रंगून में खैरियत से हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे अपने गोदाम में काम पर लगा दिया। मेरा काम दूसरे मजदूरों के साथ फलों के क्रेट सर पर उठाकर ट्रकों में लादना था। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी मगर जिस्म बड़ा मजबूत था। इतवार को छुट्टी होती तो मैं अहमद के साथ मिलकर रंगून शहर की सैर को निकल जाता। ये 1943 का रंगून था। वहाँ एक मुगल स्ट्रीट थी जहाँ दुकानों के आगे उर्दू के बोर्ड भी लगे थे। मैंने महसूस किया कि रंगून में उर्दू जबान का बड़ा चर्चा है। वहाँ बर्मी और बरसगीर के लोग आपस में टूटी फूटी उर्दू में ही बात करते थे। रंगून में मुसलमानों की एक माकूल तादाद आबाद थी और जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई तो यहाँ के मुसलमानों में पाकिस्तान के हक में ज़बरदस्त जोश व खरूश पाया जाने लगा। शहर की मस्जिदों में जुमा की नमाज के बाद बाकायदा पाकिस्तान की हिमायत में तकरीरें की जाती थीं। मेरे दोस्त अहमद के वालिद साहब, जो रंगून मुस्लिम लीग के सरगर्म रुकन थे, उनकी कोठी पर अक्सर इलाके के मुसलमान जमा होते और पाकिस्तान के क़याम के हवाले से पुरजोश इजहार ख्याल करते थे। एक रोज़ मैं और अहमद वालिद साहब के साथ रंगून की मशहूर सूरती मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने गए। नमाज के बाद मुस्लिम लीग का एक बड़ा जुलूस निकाला गया। सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल ये जुलूस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ मुगल स्ट्रीट के आखिरी कोने तक गया। हमने भी सब्ज झंडियां थाम रखी थीं और पूरी ताकत से नारे लगा रहे थे। ये माहौल हमें एक खास वलवला और मकसदियत अता कर रहा था। एक दिन अहमद ने सरगोशी के अंदाज में मुझे बताया कि दरिया किनारे जंगल में एक खंडर है जिसके बारे में मशहूर है कि किसी शहजादी की रूह आधी रात को वहां आती है। मेरे अंदर तजस्सुस की एक लहर दौड़ गई और मैंने फौरन कहा, मुझे वो खंडर दिखाओ, मैं शहजादी की रूह से मुलाकात करूंगा।
अहमद खौफजदा होकर अपने कानों को हाथ लगाने लगा और बोला, ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। वालिद साहब को पता चल गया तो हम दोनों की खूब पिटाई होगी। मगर इस आसिबी शहजादी से मिलने का भूत मेरे सर पर ऐसा सवार हुआ कि एक दिन में अहमद को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर दरिया के किनारे निकल आया। रंगून से गुजरने वाले उस दरिया का नाम ऐरावती है। मैंने अहमद को कसम देकर यकीन दिलाया था कि मैं इस मुहिम का जिक्र वालिद साहब से नहीं करूंगा। हम नारियल के घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए एक छोटी सी चाय की दुकान तक पहुंचे जो बांस की बनी हुई थी। यहाँ कुछ देहाती मिट्टी की प्यालियों में चाय पी रहे थे। अहमद ने दोबारा इसरार किया, खंडर अब थोड़ा ही दूर है। मैं अब भी कहता हूँ, ये ख्याल दिल से निकाल दो और वापस चलें। मैंने सीना तान कर जवाब दिया, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। मैं शहजादी की रूह से जरूर मिलूंगा। अहमद ने जंगल की तरफ देखा, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। अहमद ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर जाओ। ये जो कच्ची पगडंडी है, ये तुम्हें उजाड़ खंडर तक पहुंचा देगी। मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर अहमद चला गया और मैंने अल्लाह का नाम लिया और आसेबी खंडर की तरफ चल पड़ा। ये मेरी नौउम्री की हिमाकत थी कि महज तजस्सुस की खातिर इतना खतरनाक कदम उठाया। लेकिन इस उम्र में इंसान जज्बात के तहत फैसले करता है। मेरा ख्याल था कि या तो कोई आसेब वगैरह होता ही नहीं, और अगर होता है तो शहजादी की भटकती रूह से मुलाकात एक अनोखा तजुर्बा होगी। बूंदाबांदी तेज हो चुकी थी। जंगल दरिया के करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा घना तो नहीं था, लेकिन ऊंची झाड़ियों की वजह से 5 कदम से आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। नारियल, तार और इमली के गुंजान दरख्त थे और घास घुटनों तक आ रही थी। एक झाड़ी की ओट से निकला तो सामने कदरे बुलंदी पर एक कदीम किले का खंडर नजर आया, जिसकी छतें ढह चुकी थीं। दीवारें बारिश की वजह से काली पड़ चुकी थीं और उन पर जंगली बेलें चढ़ी थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़कर खंडर के करीब आकर रुका। उसी वक्त बादलों में हल्की सी गरज सुनाई दी, मगर इस गरज ने मेरा हौसला पस्त करने के बजाय मेरे शौक को मजीद तेज कर दिया। मैं खंडर के टूटे हुए गेट, जहां सिर्फ 2 दीवारें खड़ी थीं, से अल्लाह का नाम लेकर अंदर दाखिल हुआ। अगरचे अहमद के मुताबिक शहजादी की रूह रात को नमूदार होती थी, लेकिन काली सियाह घटाओं की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे शाम का समा छा गया हो। खंडर के अंदर पत्थरों के सुतून और ईंटों के ढेर गिरे पड़े थे, जिन पर घास उग आई थी। आगे एक गार नुमा जगह थी जो खंडर के तह खाने में जाती थी। गार में अंधेरा था और मैं करीब ही एक चबूतरे के सामने इमली के दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे करीब ही गहरे गहरे सांस ले रहा हो। मैंने पीछे देखा, वहां झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। मैं खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश कर रहा था, और हकीकत यह है कि मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस नहीं हो रहा था। सांसों की पुरस्रार आवाज मुसलसल आ रही थी। मैंने पुकार कर पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ बारिश की रिमझम सुनाई दी। ये समझते हुए कि आवाज गार के अंदर से आ रही है, मैंने एक पत्थर उठाकर जोर से गार के अंदर फेंका। मेरे पत्थर फेंकने पर वो पुरअसरार आवाज फौरन रुक गई। उसी लम्हे बादल जोर से गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वहां बारिश से बचने की कोई जगह नहीं थी, चुनाचे में वापस मुड़ा और भागता हुआ बांस के चाय खाने में आकर पनाह ली। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। चाय खाने में 2-4 मकामी लोग चाय पी रहे थे। एक पुख्ता उम्र के शख्स ने मुझसे टूटी फूटी उर्दू में पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आसेबी खंडर की तरफ गया था और मैंने किसी के सांस की आवाज सुनी, तो वो लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो जिंदा वापस आ गया। मैंने हौसले से कहा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये झूठ मूठ के आसेब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔